والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم ساقی کوثر شافع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و نعت کے بعد آج 4 ربیع الاول شریف ہے اور ہم حضرت قبلہ حکیم میاں محمد عنایت قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ زاویہ نوشاہی پر حاضر ہیں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانا یہ سنت صحابہ ہے۔ ہم نے یہاں کے آج کی محفل میں نعتیں سنی۔ نعتیں پڑھنا اور نعتیں سننا اور نعتیں سنانا، یہ نعت سننا سرکار کی سنت ہے اور نعت پڑھنا صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ آپ کی خدمت میں آج کی اس محفل میں چند نعتوں کے حوالے سے عرض کروں گا جو صحابہ اکرام نے لکھی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے جو ایک نعت لکھی جو کہ ان کے دیوان حسان بن ثابت میں شامل ہے، جس میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی۔ طویل 8-10 اشعار پر مشتمل نعت ہے، لیکن میں صرف 2-3 اشعار پیش کروں گا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں: ضم الالہ حسم النبی الاسمہ، اس الہ نے اپنے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ضم کیا ہے، جوڑا ہے۔ کس طرح جوڑا ہے؟ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب 5 نمازوں کے لیے پکارنے کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد 2 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے اور 2 مرتبہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ تو ضم الالہ حسم النبی الاسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب 5 نمازوں میں مؤذن کہتا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ساتھ وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام سے ضم ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے محبوب کو نام کو اپنے نام میں سے مشتق بھی کیا ہے۔ شق اللہ من اسمہ لیجلہ، اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام نکالا ہے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ دونوں کا مادہ حمد ہے، گویا اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بھی اشعار لکھے ہیں، جو وہ اشعار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لکھے جائیں انہیں اشعار میلاد کہتے ہیں۔ جس نعت میں نبی پاک کی ولادت کا ذکر ہو اسے نعت میلاد کہتے ہیں۔ تو حضرت حسان سے میلاد کی نعت سنیے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں کے ہاں
आपसे ज़्यादा प्यारे बेटे की मिलाद नहीं हुई, विलादत नहीं हुई। वाहसन मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। आपके अंदर खिलकत के एतबार से, खुल्क के एतबार से, शान के एतबार से, अज़मत के एतबार से, शख्सियत के एतबार से, परहेजगारी के एतबार से, तकवा के एतबार से, अल्लाह की मारिफत के एतबार से, किसी एतबार से कोई ऐब नहीं रखा गया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन, आप अपनी खिलकत में हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, गोया आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पैदा किया गया। याद रखें, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे पूछकर पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने अपनी मंशा और अपनी मशीयत के मुताबिक पैदा किया है। और अल्लाह की मशीयत से बढ़कर किसकी मशीयत खूबसूरत हो सकती है। अल्लाह ने अपने महबूब को जब तख्लीक फरमाया तो जैसा उसे पसंद था वैसा पैदा फरमाया, लेकिन हजरत हसन बिन साबित ने एक शेरी इजहार किया कि गोया का लफ्ज़ शामिल किया था, अन्ना का कद खुलिक़्त कमा तशाउ, कि गोया आपको आपसे पूछकर पैदा किया गया है। और चूंकि कोई इंसान अपने अंदर कोई ऐब पसंद नहीं करता, और आप तो सैयद कायनात हैं, आपकी ज़ात आपसे अगर पूछकर बनाया जाता तो आप कैसे ऐब पसंद करते। यानी आप ऐसे बेऐब हैं, गोया आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया गया। इसी तरह सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मोहतरम चाचा जान हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हैं, और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी हाजिर हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। आप सैयद कायनात भतीजे थे, लेकिन हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने रिश्ते का हवाला नहीं दिया, बल्कि सरकार की शान का हवाला दिया। ए अल्लाह के रसूल, उरीदु अन अमदहा का, मैं इरादा रखता हूँ कि मैं आपकी मदह करूँ, आपकी तारीफ़ करूँ, आपकी शान बयान करूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की अव्वली और अजीम तरीन नात कही। कहा, या रसूल अल्लाह अंत लम्मा वुलिदता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी विलादत हुई, जब आपका मीलाद हुआ, जब आप पैदा हुए, अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द, ज़मीन रोशन हो गई। और इशारा कुरान पाक की एक आयत का दिया। कुरान पाक की एक आयत मुबारका है, वअशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, ज़मीन अपने रब के नूर से जगमगा उठी, ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो गई। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कुरान की इस आयत से तशबीह ली और कहा, अंत लम्मा वुलिदता, जब आप पैदा हुए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरी वालिदा के लिए अदा लहा कसूर शाम, शाम के महल्लात रोशन हो गए। इतनी रोशनी थी कि शाम के महल्लात नजर आने लगे। तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अंत लम्मा वुलिदता, जब आपकी विलादत हुई, अशरकतिल अर्द, ज़मीन जगमगा उठी, वदात बिनूरिकल उफ़ुक़ु, और आपके नूर से मशरिक़ व मगरिब रोशन हो गए, आफाक रोशन हो गए, मशरक़ के भी सारे मकामात रोशन हो गए, मगरब के भी सारे मकामात रोशन हो गए। अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द वदात बिनूरिकल उफ़ुक़ु। और आगे आपने कहा, वनहनु फी ज़ालिकन नूर वज़िया, इस नूर और इस रोशनी में, इस चमक में, इस किरण से, वनहनु फी ज़ालिकन नूर वज़िया सुबुलुल हुदा वस्सलाम नहतरकू, हम हिदायत और सलामती के रास्तों को तय करते हैं। या रसूलुल्लाह, आप पैदा हुए तो कायनात में जुल्मतें काफूर हो गई, हर तरफ रोशनी हो गई, और ये रोशनी सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पैदा होने वाली ये रोशनी, ये नूर हिदायत, इसने आफाक को रोशन कर दिया। और ए अल्लाह के रसूल, हम इसी रोशनी में और इसी चकाचौंध में
इसी जगमगाहट में हिदायत और सलामती के रास्तों को तय करते हैं। तो ये सहाबा किराम का मामूल था। हज़रत काब बिन ज़ुहैर जिन्होंने कसीदा बानत स्वाद पेश किया, और बहुत सारे सहाबा किराम हैं जिन्होंने सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहे और इस तरह नात की महफिल सजाईं और सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से अपने दिलों को रोशन किया। सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, आपके हुस्न जमाल का तज़किरा, आपके जूदो नवाल का तज़किरा, आपकी अज़मत और कमालात का तज़किरा, आपकी तालीमात का तज़किरा, ये दीन का खुलासा है, ये दीन का मकसूद है। सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत, आपकी ताज़ीम व तौक़ीर और आप पर ईमान, ये वो बुनियाद है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है। इकबाल ने कहा, बे मुस्तफ़ा बे रसा खेशरा के दी हमाऊस, ए लोगो अपने आप को सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाओ कि सारा दीन वही हैं। अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस, अगर उन तक न पहुँचे तो सारी की सारी बूला हबी हो जाएगी। इस माह मुक़द्दस में अपनी ज़ुबानों को सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से मुअत्तर रखिए, मुताहर रखिए। अपनी महफिलों को सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से सजाइए। अगर हमारे दिलों में हकीकी मोहब्बत की शम्मा रोशन हो जाए तो इकबाल ने कहा था, दहर में इश्क़ मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। और फिर कितनी कौमियतें वजूद में आईं, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी, याद खैरुल बशर के रिश्ते से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन व सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फिल आखिरीन व सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फिल नबिय्यीन व सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फिल मुरसलीन व सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन।